Hello, dear friends. Today I am going to start with a new topic that I, Dr. Shamsher Singh, will discuss with you about the diabetes mellitus and how that means diabetes is caused, what are the factors which are responsible for the diabetes, and how we can screen the various animal model of diabetes mellitus. So that means whenever there will be availability of any drug, these drugs they are previously screened on the animals. That means animal act as a animal models. So let's start about the diabetes. So what is diabetes? So diabetes indicate abnormality and mellitus indicate in the maltose. So that means what you can say, diabetes is the abnormal thing where your maltose is not completely absorbed, because there is another disorder which is called as diabetes insipidus. So this diabetes insipidus is different from the diabetes mellitus, because here there is a role of another hormone which is called as a vasopressin. So dear friends, आज मैं इस पे क्यों बात करने जा रहा हूँ? क्योंकि in 10% nearly 1% is suffering from the diabetes. So that means the prevalence of the disease is too high, and that is not caused by a single factor. There are so many factors. तो एक कॉज नहीं है इसका, बहुत से कॉज हैं जिससे हमें डायबिटीज़ होती है. क्योंकि जो दूसरी टाइप की डायबिटीज़ है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, दिस इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ वैसोप्रेसिन. So vasopressin, which is one of the chemical hormone which is also called as 8-arginine vasopressin. This is the another name of this hormone. That means which is responsible to control the urine output in the body. But if I will talk about the diabetes also cause altered endocrine functioning. That means there will be a abnormal appetite, there will be a abnormal thirst, and there will be a abnormal urine output. So we cannot say that diabetes insipidus is like a diabetes mellitus, because in mellitus there is a role of glucose absorption. So what I want to say that everybody from young to old they are suffering from the diabetes, and which is not caused by a one factor. It can be associated with the diet, it can be associated with the lifestyle, it can be associated with if you are taking any drug, it can be associated with your hormonal balance. So that means there is a no single factor by which you will suffer from the diabetes mellitus. So going to in brief about the diabetes, I will discuss with you that what is diabetes. So as per the definition, you can say it is a metabolic disorder. So what it mean? It mean this is related to your metabolism. जो आपकी पाचन क्रिया है उसके related है diabetes mellitus, because it is characterized by hyperglycemia. So there are three things: normoglycemia, hypoglycemia, and hyperglycemia. That means there are some person who are normal, they are called as a normoglycemic. The second thing, which some persons who are having a deficient glucose, they are hypoglycemic, or either they are having a higher insulin secretion, they are hypoglycemic. Or we can say if any person suffer from the pancreatic cancer, they are hypoglycemic. On the third thing, if any person will take a higher dose of insulin, that person will become hypoglycemic. So that means there are 3 to 4 things which you should note that how we can suffer from hypoglycemic, but this is the thing of hyperglycemia.
व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो आप ग्लूकोज नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डेली शुगर कंजम्पशन 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर आप 40 ग्राम से ज़्यादा इनटेक करते हैं शुगर की, दैट मीन यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज और यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनी टाइप ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज थिंग्स, तो इसका क्या होगा, वो ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड व्हाट आई वांट टू से कि हायर शुगर लेने पे एक नॉर्मोग्लाइसीमिक का ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हाउ वी कैन से कि पर्सन इज हाइपरग्लाइसीमिक। तो हम किसको कहते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिक है? हाइपर का मतलब है द लिमिट अबव देन द नॉर्मल। Because if I will discuss with you as per WHO is called as a World Health Organization. Now they have discussed that a person blood glucose level should be in between approximate 90 to 120 mg per deciliter. So what I want to say, now in the recent guideline as per the American Diabetic Association, a person who will take a diet, his glucose can go up to 140 or 160 mg per deciliter for few hours or for few seconds. So what I want to say that these persons they are not diabetic. अगर आपका अच्छा खाना खाने से, अच्छी शुगर लेने से ग्लूकोज का लेवल 140, 150, 160 चला जाए तो आप अगर इमीडिएटली टेस्ट करवाएं तो ये कभी ना सोचें कि वी आर डायबिटिक। दैट मीन अगर आप डायबिटिक कंफर्म करना चाहते हो तो आप क्या करें, प्री प्रेंडियल एंड पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने से पहले और खाना खाने के 1-1.5-2 घंटे बाद आप अपना ग्लूकोज चेक करवाएं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि व्हाट वाज माई प्री प्रेंडियल, व्हाट वाज माई प्री मीन पहले, डाइट से पहले, प्रेंडियल से पहले, ठीक है, एंड पोस्ट मीन आफ्टर द डाइट, आफ्टर योर मील, आफ्टर वंस यू ईट एनीथिंग। सो व्हाट इट मीन कि आपको 2 टाइम पे ग्लूकोज चेक करवाना चाहिए एंड आइदर यू कैन ग्लूकोज टेस्ट बाय गॉडपॉड मेथड जो कि लेबोरेटरी में यूज होता है, और आइदर यू कैन चेक इट बाय ग्लूकोमीटर। क्यों? क्योंकि जो लोग ग्लूकोमीटर यूज करते हैं उसमें वो छोटी सी पिन प्रिकिंग करते हैं पेरिफेरली। तो जब आप यहाँ पेरिफेरली ग्लूकोमीटर यूज करते हैं जहाँ आप ग्लूकोज फ्रॉम द इंट्रावीनस ब्लड से करवाते हैं तो उसमें 10 to 15 mg पर डेसीलीटर का वेरिएबिलिटी हो सकता है। उसका रीजन क्योंकि दिस इज ए लार्ज ब्लड वेसल and it contain a more blood volume and these are the peripheral capillaries, so that mean the peripheral capillaries they provide glucose to peripheral tissue also। तो जब यहाँ पे आपके जो peripheral tissue हैं वो भी ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, so that's why little bit variability can be there। तो इसलिए आपको हाइपरग्लाइसीमिया कंफर्म करने के लिए there should be a 2 time that you should perform the glucose test। Now this is called as a glycosuria, that mean there will be a presence of glucose in the urine, glycosuria। So that mean whenever a person will suffer from the hyperglycemia, so what it mean, that will cause increase in the glucose level in the urine। और उसका क्या रीजन रहते हैं मैं आने वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जब कोई बंदा ग्लूकोज खाए, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, ग्लूकोज जब खा रहा है तो उसका ग्लूकोज यूरिन में भी आता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ द डायबिटीज। थर्ड पार्ट है हाइपरलिपिडीमिया। सो दैट मीन इन केस ऑफ डायबिटीज समटाइम द पर्सन विल बिकम लीन और समटाइम द person will become obese। It depends upon the type of diabetes and it depends upon the diet of the patient or the person। इसलिए उन लोगों का जो
डायबिटीज से सफ़र करते हैं उनका हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर मीन हाई, लिपिडीमिया मीन लिपिड्स। अब लिपिड्स में आपके क्या आते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड वीएलडीएल। तो 4 टाइप के लिपिड जो हैं वो पर्सन की बॉडी में बढ़ते हैं। और 5th टाइप के जो लिपिड हैं HDL विच इज़ कॉल्ड एज ए गुड फैट। तो गुड फैट का गुड जो HDL फैट है उसका लेवल कम होता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन डायबिटीज से सफ़र करता है तो उसको कभी भी हाई लिपिड डाइट नहीं लेनी चाहिए, उसको कभी भी हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं लेने चाहिए, उसको कभी भी फ्राइड बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जहाँ उसको कभी भी जो है कि नॉन वेजिटेरियन है तो लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन वेज नहीं लेना चाहिए। और 5th थिंग आ जाता है कि अगर उसको ये लग रहा है कि आई एम ए डायबिटिक, आई एम ए ओबीज, और उसको अपना खाना भी फ्यू इंटरवल्स के बाद खाना चाहिए आफ्टर 2 आवर्स, सो दैट इफ यू आर टेकिंग ए डाइट फॉर 3 टाइम्स इन ए डे, इंस्टेड यू कीप इट और फॉर 4 टाइम्स इन ए डे। आप उसको 5 टाइम लें बट थोड़ा थोड़ा करके लें। सो दैट मीन अगर अपनी डाइट को आप डिवाइड करके चलते हैं तो उसमें आपकी ड्रग का इफेक्ट भी बढ़ता है और उसमें आपका ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब एंड लास्ट पे आ जाता है कीटोनीमिया। दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन द यूरिन। ठीक है, कीटो यूरिया, कीटोनीमिया। सो देयर आर 2 टर्म्स। सो कीटोनीमिया एंड कीटो यूरिया, whenever a person is hyperlipidemic, whenever a person is obese, मतलब उसको मोटापा है, वो शुगर से सफ़र कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अगर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खा रहा है, फैट खा रहा है, तो इसका मतलब उसके यूरिन में कीटोन्स बॉडी आएंगी और वो जो कीटोन बॉडी हैं वो उसको फॉल स्मेल देंगी। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए पुराने टाइम पे तो कोई टेस्ट नहीं होता था, बट अगर आप सिंपल सा देखो तो व्हेन एवर यू विल गो फॉर यूरिनेशन, जब आप यूरिनेशन करने जाते हो वॉशरूम में, जहाँ कहीं भी ओपन एरिया में, तो अगर आपके यूरिन को छोटे छोटे आंट्स और इंसेक्ट वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब आपके यूरिन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। सो दैट मीन दिस इज द सिंपल फिजिकल मीन विच वाज बी यूज्ड टू एनालाइज इन द ओल्ड टाइम बिकॉज देयर वर नो एनी कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो आज भी अगर आप देखें तो आप अपना यूरिन वहाँ पे करें जहाँ वहाँ पे थोड़ा सा गिरा दें, यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, आंट्स हैं, तो अगर वो आपके यूरिन के साथ अडहेयर करते हैं, जहाँ उसको वो टच करते हैं, दैट मीन कि आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का बढ़ना, ग्लाइकोयूरिया, यूरिन में ग्लूकोज का आना, और हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का बढ़ना, ब्लड में बढ़ जाना, और तीसरा कीटोनीमिया और कीटोयूरिया, आपके यूरिन में कीटोन बॉडी का प्रेजेंस होना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज। नाउ इंडिया इज one of the country where approximate 50 millions of the people they are suffering from the diabetes. Now dear friends, we are at the higher prevalence as compared to some other countries. The reason, because in India we basically like the fried you can say food, जिसको और भी अच्छा फ्राई किया जाए। तो हमारे इंडियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करते हैं, ऑयल रिच फूड खाते हैं, इसलिए इंडिया के लोग ओबीज भी हैं। और दूसरा, दे आर सफरिंग फ्रॉम द टाइप 2 डायबिटीज मोर। सो आई विल डिस्कस विद यू आफ्टर फ्यू टाइम दैट कितनी टाइप का डायबिटीज होता है और इसको टाइप 1 क्यों कहते हैं, टाइप 2 क्यों कहते हैं। सो व्हाई दे आर सो नेम्ड।
As per WHO is called as World Health Organization. ये वो organization है which provide the guidelines that how to treat the disease, which is the you can say particular area WHO who collect the information worldwide. तो ये पूरी दुनिया से information लेता है कि किस कंट्री में कितने लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं. तो as per WHO 3.4 मिलियन डेथ आर कॉज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल. तो कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करते तो यहाँ पे इंडिया में या कुछ और कंट्रियों में वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इसका डायबिटीज़ का एसोसिएटेड डेथ द मोर्टेलिटी रेट इज़ हाई. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप अपनी डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करते तो डायबिटीज़ आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस करती हैं. ठीक है. सो उन कॉम्प्लिकेशन से जैसे कि आप लोगों ने सुना रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, ठीक है, नेफ्रोपैथी, ऐसी 3 टाइप की कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं. जैसे आपने सुना होगा न्यूरोपैथी. सो न्यूरो इंडिकेट क्या करता है? न्यूरॉन. न्यूरो इंडिकेट न्यूरॉन. So neuron and pathy indicate your neurons are in pathological state. What pathological? Pathological mean normal to abnormal. पैथो मीन नॉर्मल टू एबनॉर्मल डिजीज स्टेट. सो इस चीज को हम कहते हैं न्यूरोपैथी. सो न्यूरोपैथी में डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी आप देखो डायबिटीज पर्सन न्यूरोपैथी से सफ़र करता है तो उसके फिंगर्स में यहाँ पे टिंगलिंग सी होती है और उसकी पेन सेंसेशन बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरएल्जीजिया एंड आइलोडाइनिया. हाइपरएल्जीजिया मीन इंक्रीज सेंसिएशन टूवर्ड पेन. पेन की तरफ हमारी सेंसिएशन बढ़ जाना. जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ कि आई होल्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंटर. तो अगर मैं पॉइंटर को ऐसे करूँ तो मेरे को कोई पेन नहीं है, बट अगर मैं डायबिटीज पेशेंट को ऐसे करता हूँ तो उसको पेन ज़्यादा फील होगा. मीन वो एल्जीजिया की तरफ हाइपर है. द टर्म इज कॉल्ड एज हाइपर एल्जीजिया. एंड द सेकेंड टर्म जो डियर फ्रेंड्स आता है वह एलोडाइनिया. Allodynia mean the object which do not cause pain normally but it cause pain to the diabetic patients. Suppose if I will turn the pages of my copy, तो अगर आप अपनी कॉपी के पेज चेंज करते हैं तो आपको पेन तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर डायबिटीज पेशेंट जो है ऐसे बार बार पेज चेंज करता है या नॉर्मली किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो उसको एलोडाइनिया कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पेन कर रहा है जो नॉर्मली पेन नहीं करता. तो इसलिए 2 तरह के सिम्टम जो आते हैं वो किस में आते हैं? डायबिटिक न्यूरोपैथी में. जो सेकंड थिंग आ जाता है रेटिनोपैथी. तो इसका मतलब आपकी जो डायबिटीज़ है वो रेटिना को भी अफेक्ट करती है. अब डियर फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ के साथ साथ उनकी आई साइट वीक हो जाती है. सो मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो वो अल्कोहल ड्रिंकिंग ना करें. सो अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है. Never to take the alcohol during if you are suffering from the severe diabetes. Don't to take steroids. Not to take steroids. ठीक है, like glucocorticoids. उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं लेने चाहिए. और तीसरा आ जाता है क्लोरोक्वीन दैट इज क्विनीन जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं उनको नहीं लेनी चाहिए. क्योंकि उसका रीज़न क्या है? अगर कोई भी पेशेंट दारू भी पी रहा है, साथ में अल्कोहल भी पी रहा है और साथ में वो डायबिटिक भी है, तो आपको पता है अल्कोहल इंक्रीज द मीन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी. अल्कोहल हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो मैं एक नॉर्मल सी लेमैन एग्जांपल दे दूं कि
एक पर्सन पानी के साथ चपाती खा रहा है, वो बोल रहा है मैंने 4 खा ली अब मैं नहीं खाऊंगा, बट आप एक दूसरे बंदे को अल्कोहल के साथ चपाती खिला दो, वो 8 भी खा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी चपाती जो है, उसकी जो डाइट जो है, उसको अल्कोहल उतनी फास्ट डिग्रेड करी जा रही है। तो इसका मतलब कि कोई भी पर्सन अल्कोहल ले, अगर वो साथ में डायबिटिक भी है, तो अल्कोहलिक पर्सन कंज्यूम में मोर फूड, वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और ज़्यादा खाना खाओगे तो आपका ग्लूकोज और ज़्यादा बढ़ेगा। सो एक सिंपल सा मीन है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्कोहल करता क्या है। क्यों? क्योंकि जब रेटिनोपैथी होती है तो रेटिना डैमेज होता है, और दूसरी साइड अगर देखें तो हमारी आइज़ में इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन बढ़ती है। अब आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि जैसे एक बंदे का ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक 130/85 लगाओ या 120/80 लगाओ आप, तो एक बंदे का ब्लड प्रेशर इतना है। सिमिलरली हमारी आइज़ में भी फ्लूइड होता है जिसका कोई ना कोई प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन। ये जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन है नॉर्मल पर्सन की होती है अप्रोक्सीमेट 16 to 18 mmHg। अब जब ये इंट्राऑक्यूलर टेंशन किसी भी इंसान की 21 या 22 mmHg से बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं कि पर्सन के यहाँ पे जहाँ तो ग्लूकोमा टाइप है, जहाँ ओपन एंगल है, जहाँ क्लोज एंगल है, जहाँ इसको जे बंदा डायबिटीज से भी सफ़र कर रहा है और साथ की साथ डायबिटीज से उसको ना अच्छा हो भगवान की तरफ से कि कैटरैक्ट भी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अल्कोहल ने क्या किया, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि अल्कोहल लॉन्ग टर्म कंजम्पशन एट हायर वॉल्यूम, डोज लगाएं या वॉल्यूम लगाएं तो ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ाती है, जो फ्री रेडिकल रेटिनोपैथी के साथ साथ और रेटिनोपैथी कॉज करते हैं। तो जब भी डियर फ्रेंड्स रेटिना डैमेज होता है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि रेटिना इज़ ओनली वन ऑफ द एरिया ऑफ आइज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विज़न, क्योंकि जो सनलाइट से आपकी रेज आती हैं वो रेटिना पे ही स्ट्राइक करती हैं और रेटिना ही उनको टारगेट करता है टूवर्ड द लेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी इंसान का रेटिना डैमेज होता है तो आई साइट वीक या आइज में चेंजेस जरूर आएंगी। दूसरा मैं अगर आपको बोल दूं कि कई बार हम क्या करते हैं, इफ द पर्सन और द पेशेंट, यू कैन से पेशेंट, जब वो सफ़र करते हैं अर्थराइटिस से तो उनको कई डॉक्टर क्या करते हैं, अर्थराइटिस में स्टीरॉइड्स देते हैं, ओके, एंड दी स्टीरॉयड आर मोर हार्मफुल फॉर द पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम द डायबिटीज। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें गलती से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे दें, जिसका मतलब डायरेक्ट है ग्लूकोज एंड कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज एंड कॉर्टिसोन, इसका मतलब वो स्टीरॉयड जो आपकी ग्लूकोज की मात्रा को बॉडी में बढ़ा दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी आप डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे, ऊपर से आपको गलती से जहाँ आपने ले लिए तो स्टीरॉयड ने आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया, जिससे फिर क्या कॉम्प्लिकेशन आया कि डायबिटीज़ और सीवियर हो गया। जहाँ तो उसने न्यूरोपैथी फास्ट कर दी, जहाँ रेटिनोपैथी को भी वो साइड वाइज इफेक्ट करेगा। और जो तीसरा पार्ट आ जाता है क्लोरोक्विन, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये ऐसी ड्रग है जिसको आपने देखा होगा, क्लोरोक्विन कोविड के टाइम पे बहुत यूज़ किया गया। अब क्वेश्चन ये है, ये जो क्लोरोक्विन है इसका हमारी बॉडी में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमाइनोग्लाइकोसाइड से भी ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये बहुत जल्दी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद डिफरेंट कैविटीज़ में चली जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि क्लोरोक्विन अकमुलेट इन द आइज एंड कॉज ग्लूकोमा, तो ये ऐसे भी कर देती है। इसलिए वेन एवर यू विल टेक एनी काइंड ऑफ द ड्रग ड्यूरिंग द डायबिटीज, यू शुड नो द बेसिक थिंग्स कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर हमें कोई ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है, हमें लोकल डॉक्टर को जहाँ जो भी लोकल फिजिशियन है उसको कंसल्ट करना चाहिए। तो ये मैंने एक आपको बेसिक बता दिया कि जो डायबिटीज़ के साथ लिंक है। उसके बाद अगर देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस
approximate, this is the estimated limit that in 2030 the limit could be increase high, that mean आने वाले टाइम पे डायबिटीज़ के पेशेंट और बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि डायबिटीज़ जो है इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। डायबिटीज़ मेलाइटिस, दिस इज़ कॉल्ड एज ए टाइप 1 डायबिटीज़, सेकेंड इज कॉल्ड एज ए टाइप 2 डायबिटीज़, and there is a called as a type 3 diabetes. Type 3 mean gestational diabetes and then there is a hyperglycemia. एक मैं आपको जनरल सी टर्म बता दूं, कई बार ये स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं जब उनकी नॉलेज में नहीं होता, तो दे आस्क द क्वेश्चन कि क्या सर ये जो हाइपरग्लाइसीमिया इट इज़ कॉल्ड एज ए डायबिटीज़? नो डियर फ्रेंड्स, हाइपरग्लाइसीमिया इज ए पार्शियल और ए फ्यू टाइम इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल। यू कैनॉट से कि इफ़ एनी बॉडी फॉर 7 to 10 days हैविंग ए हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, तो आप उसको बोल दो कि वो डायबिटिक पेशेंट है। नो, if there is a continuous sustained increase in the glucose up to 2 or 3 month, अगर 3-4 मंथ के लिए किसी भी पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज लेवल 160 mg पर डेसीलीटर से कम नहीं होता, तो आप लगा के चलो कि आप डायबिटीज़ से ही सफ़र कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताता हूँ कि डायबिटीज़ की भी स्टेजेस होती हैं, बट उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ कि कितनी टाइप की डायबिटीज़ होती है। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज ए टाइप 1 diabetes and it is also called as a insulin dependent diabetes। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। एंड अदर इज कॉल्ड एज ए हाइपर अम्यून रिस्पॉन्स एसोसिएटेड डायबिटीज़। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बंदे का इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाए तो बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है वो। जब वो बीटा सेल को डिस्ट्रक्ट करता है तो उस टाइम पे इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो हम बाहर से इंसुलिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दूसरा नाम डियर फ्रेंड्स दे दिया, इट इज़ कॉल्ड एज ए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्यों? क्योंकि जो डायबिटीज़ पे काम किया था, देयर आर 2 साइंटिस्ट विच आर नाउन टू बी रिपोर्टेड फॉर दिस। जो था एक बेंटिंग था, एक बेस्ट था। तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने ये देखा कि देयर इज़ ए सम यू कैन से फ्लूइड, जो उन्होंने पैनक्रिएटिक एक्सट्रैक्ट लिया, उसने देखा कि व्हेन वी इंजेक्ट टू द अनदर एनिमल शो हाइपोग्लाइसीमिया। तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या जो एक पैनक्रिएटिक एक्सट्रैक्ट है उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो दूसरे एनिमल को हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये पता चला कि उसमें एक हार्मोन है जिसको इंसुलिन कहते हैं। तो इसलिए बेंटिंग एंड बेस्ट ने क्या किया, अपने ही डॉग को पैनक्रिएटेक्टोमी की। उन्होंने उनका पैनक्रिएटिक लाइगेट किया और लाइगेट करने के बाद ब्लड देखा तो उसमें ग्लूकोज बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपके भी अभी देखें तो हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट होती है जो कि पैनक्रिया से इंसुलिन को कैरी करती है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको मैं सिंपल बता दूं कि सपोज अगर ये डोर है तो डोर में अगर ग्लूकोज एंटर करता है तो इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन भी एंटर करते हैं। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो हमारे पास की नहीं है और लॉक लगा हुआ है। लॉक लगा है, की नहीं है हमारे पास। की कौन सी है? इंसुलिन। तो अगर किसी भी सेल की लगानी हो तो वो की है इंसुलिन, और वो लगती कहाँ है? वो लगती है ग्लूट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो देयर आर 4 to 5 type of the glucose transporter like GLUT1, GLUT2, GLUT3 and GLUT4। तो GLUT जो 2 है ये कई ब्रेन में भी पाया जाता है, और जो GLUT4 है ये आपके मसल पे पाया जाता है। GLUT1 भी पाया जाता है लेस एक्सप्रेशन में। तो जो GLUT4 है आपका, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज। कहने का मतलब कि आपके सेल के अंदर ग्लूकोज तभी एंटर करेगा जब GLUT4